there is a shlok, Dash Kupa Samavapi, Dash Vapi Samohrdah, Dash Hrda Samah Putra, Dash Putra Shamo Drumaha. The meaning is like 10 wells equal to one pond, 10 pond equal to one lake, 10 lake equal to one sun, and 10 suns equal to one tree. Okay. Now you can see the importance of a plant, a tree. हमें लगता है कि अब हम environment के बारे में ज्यादा सोचते हैं. We are the first in whole of the ancient human civilization that is very much concerned about plants and environment. The eighth shlok of Vriksha Ayurveda is Vriksharopam Samaste Dharma Artha Kama Mokshanam Drumet Pasa Dhanam Yatah. Now in Vaisheshik Darshan, it is being said like, if you don't fulfill your dharma, artha and kam, you are not ready for the moksha part. Okay. In Vaisheshik Darshan, it is being said that there is no shortcut for the moksha. You have to go through dharma, artha and kam. And Vriksha Ayurveda is telling कि plantation से तीन तो पूरा होता ही है, इसलिए चौथा भी automatically पूरा हो जाता है. From the framework of Vat, Pitta, Kapha, we can, you can say, groups these all problems. So हमें हर problem को अलग अलग treat करने की जरूरत नहीं है. Okay. Today's topic is my expertise, not just interest. So this is my second talk on this particular topic. Earlier it was given in the channel Sangam Talk Hindi, and lots of comments were there like we want to hear it in English language so we can better understand it, because it is very fascinating that there is such a science, and that is Ayurveda. Okay, let me first clarify what the word Vriksha Ayurveda means. It doesn't sounds like ki Ayurveda hai and we are getting some medicinal value out of herbal extract or extract from trees for human. No, it is not that. Vriksha Ayurveda is care of plants from the framework of Ayurveda. Okay, and what is the framework of Ayurveda? That the three dosha framework. Okay, there is a disbalance, or you say Vat, Pitta, Kapha. Dosh is there, and then we go for the solutions. First, we analyze the problem in terms of Vata, Pitta, and Kapha dosha. So now let me share this slide. Today's topic is Surapal Vriksha Ayurveda. Okay, Vriksha Ayurveda is a kind of branch of science which is dealing with plant life sciences, and one of the ancient rishi on this topic is Surapala. Okay. Varah Mihir also written the book Brihat Samhita. He also mentioned about Vriksha Ayurveda. Many other ancient saints were also the experts of this particular topic. So we will limit ourselves to the portion of Vriksha Ayurveda which was mentioned by Surapala. So last time the talk ended with this particular shloka. That shlok mentioned about rejuvenation of a plant after a lightning strike. वज्रपात जो बिजली गिर रही है पेड़ पौधे पर, उस वृक्ष को कैसे बचा रहे हैं, उसकी भी मेथोडोलॉजी दी हुई है. Now you see, we in agriculture we go for precautionary management, we go for pesticides in chemical farming. Okay, growth promoters, growth hormones. These are all the very advanced form of tools and instruments in agriculture. Now you see a particular shlok which is mentioning about rejuvenation of plant after the lightning strike. Okay, and even if you don't know the Sanskrit and don't know the meaning of this particular shlok, I have some keywords from this shlok like Madhuka, it is Mahua, Mugdha, green gram, Til, sesame, Mash, pulses, दलहन जो दाल की फसल हम कहते हैं, ऊशीरह वेटिवर, मुष्टा मधु, मिल्क, सीता, विदारी, तिल, नाग जिह्वा, कुमुदवती, सैवाल, लोटस बल्ब.
Okay, bulb of kamal. Okay, now these ingredients are there, so some connotation or some particular paste or a solution is being made, and it is being used in for the plants for the rejuvenation. Okay, now in Ayurveda there is a particular thing that the quantity of the ingredient is not mentioned. Okay, even if you go for Charak Samhita or Susru Samhita or the mainstream Ayurveda, the quantity of the ingredients are not mentioned. Why? Because if quantity is mentioned there, you will treat the solution as one fits for all. Okay, you have to first analyze what is the intensity of the problem, then you have to decide the quantity of a particular remedy. Okay, so this is the shlok that was very much fascinating, and I was just stick to this Granth Vriksha Ayurved, and this shlok is particularly mentioned in the Vishwa Vallabha Granth written by Chakrapani Mishra. Now Chakrapani Mishra is very well known in the Darbar of Maharana Pratap. Okay, so this text, this Vriksha Ayurved text is not kind of कि ये लुप्त हो गई थी. It is very recent in terms of the civilizational timeline of भारत. It is very recent कि 400 500 year ago तक ये जो है टेक्स्ट जो है यूज में है, प्रैक्टिस में है. नाउ एग्रीकल्चर व्हाट को देखकर हमें क्या लगता है? ओके, देयर इज सम काउ डंग, काउ यूरिन, फूड, स्पाइसेस, फर्टिलाइजर, मैन्योर, mainly food crop. But let me tell you a thing, like industrial revolution is only 250-year old. Okay, industrial revolution. And even if we go for the timeline, very much restricted, conservative timeline of Bharatiya civilization, it is like 10,000 years plus for everyone who even don't consider Ramayana or Mahabharat as a itihas. They also consider like nahi 10,000 साल तो है भारत की civilization. Now only 250 years is of industrial revolution और industrial ecosystem. तो उसके पहले क्या? ओके, उसके पहले क्या रही भारत में? ये जो 250 years of इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम है, ये बहुत छोटा है कंपेयर टू द 10,000 years old civilization. Now you have also heard like we were the 1/3 GDP of the world. Now let me tell you few industry like textile industry. So before the synthetic, the industrial, the textile industry, इसका base क्या होगा? Cotton, and cotton is coming from agriculture. The aroma, the perfumes, it is coming from flowers, not the chemicals. And flower is coming from floriculture, that means agriculture. Now there is spices, there are medicines. Medicines are again coming from the agriculture. Now there are kind of jute, you can call it a packing material, again coming from the agriculture. Now the fuel of the economy, you are using horses, elephant in the ancient time. So the fodder is the fuel of your economy, because these bullock carts or the horse cart is driven by the fodders, and fodders are also coming from the agriculture. So it is not just the food item, it is the medicinal items too, spices, textile, fuel, aroma, even the tobacco. Okay, tobacco, liquor industry, even the liquor industry, it is coming from the agriculture. So agriculture is the base of again more than 10 plus industries. And there are other industries like minerals, metals, metallurgy, special stones, gems. These all encapsulates the economic system of ancient Bharat. So if you have the contribution of 1/3 of GDP of the world, and agriculture is the base of 10 plus industries, how can you have unstructured science of doing agriculture? Okay, so Vriksha Ayurved, if we can part it in a manner like how to explain it, what is the subject? So Vriksha Ayurved, you can call it agriculture
plus botany plus agrometeorology plus soil sciences plus ecology. And you need to have the prerequisite of basic knowledge of Dravya Guna. It is the Ayurvedic pharmacology and the Jyotish Shastra. Okay, now from where Jyotish Shastra is coming into the agriculture. Now, in recent times, we hear a lot of about biodynamic farming in Germany. Biodynamic farming using the cosmic energy, using the lunar movement, using the geographical leverages. So, Jyotish is what we understand. From Jyotish, we get the planetary movements and planetary positions of stars and planets, okay, in Jyotish Shastra. And that has a substantial role in agriculture. So, to be an agriculturist in ancient time, you need to have understanding of Jyotish Shastra. That means you need to have some basic arithmetic understanding of Ganit. Then you can calculate the required calculations for the agrometeorology calculations. Okay, so in today's time, we learn any subject in very compartmental way. Okay, and we have a PhD for a particular topic and we specialized in that particular subject. तो हम आजकल कहते हैं कि जो PhD करता है वो उतना कम इन होल जानता है, वो उस सब्जेक्ट का बहुत बड़ा एक्सपर्ट है, बट इन होल वो नहीं जानता है. नाउ इन एंशियंट टाइम आप इस सब्जेक्ट को देख सकते हो कि इसने बाइफर्केट करके इसको अलग से नहीं रखा है. इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ दीज ऑल अदर sciences. Okay, so Vriksha Ayurved is the plant life sciences, Ayurved for plant, which has these subjects, subtopics. Now in Vriksha Ayurved and the Matsya Puran, there is a shlok, Dasha Kupa Samavapi, Dasha Vapi Samohrdah, Dash Hrda Samah Putra, Dash Putra Shamo Drumaha. The meaning is like 10 wells equal to 1 pond, 10 pond equal to 1 lake, 10 lake equal to 1 sun, and 10 suns equal to 1 tree. Okay. Now you can see the importance of a plant, a tree. हमें लगता है कि अब हम environment के बारे में ज्यादा सोचते हैं. We are the first in whole of the ancient human civilization that is very much concerned about plants and environment. No, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि water bodies से compare किया गया है and then sun से, your own sun, उससे compare किया गया है tree को. Now let me clarify the word tree, the vriksha word. There is other words like vanaspati, drum, lata, and of course the vriksha. Now the meaning of these 4 words is like drum is the plant that is giving fruiting after flowering. Okay, a plant having flowering and fruiting both, that is called drum. Okay, now pomegranate is a drum, not a vanaspati. It is a drum. Creeper is the lata. Lata is called creepers, like bitter gourd is a creeper, or any creeper you see, it is the lata. Vanaspati, now you can recall in childhood, like there was a brand Dalda, they were selling Vanaspati tel, the palm oil. Actually the palm tree don't give the flowers, they give directly the fruits. Okay, that's why they are called Vanaspati. Okay, now drum is flowering plus fruiting, Vanaspati is only fruiting, Lata is the creeper, and Gulm, it is called the bushes. So in Vriksha Ayurveda, these 4 different parts of kind of the plant kingdom is being taught in this text, not just Vriksha. Vriksha is the tree part. Trees, of course, that is not herb or shrub. That is the taller, and we can understand what a tree is being called. The 8th shlok of Vriksha Ayurveda is Vriksha Ropam Samaste Dharma Artha Kama Mokshanam Drumet Pasa Dhanam Yatah. Now in Vaisheshika Darshan, it is being said like, if you don't fulfill your dharma, arth and kam,
you are not ready for the moksha part. Okay, in Vaisheshik darshan it is being said that there is no shortcut for the moksha. You have to go through dharma, arth and काम. एंड वृक्ष आयुर्वेद इज टेलिंग की प्लांटेशन से तीन तो पूरा होता ही है, इसलिए चौथा भी ऑटोमेटिकली पूरा हो जाता है। धर्म अर्थ काम की पूर्ति वृक्षों के प्लांटेशन से होती है। हाउ वी कैन सी दैट एंशिएंट टेक्स्ट में हमें यह कहा जाता है कि वृक्ष योनि में उनका जन्म होता है जिन्होंने पाप बहुत ज्यादा किया है। दोज हु हैव डिड मोर सिन is being in the next birth they are born as a tree. Now उनको sin को compensate करने के लिए वो क्या करते हैं, tree give shelters to the species and बहुत सारे ऐसे माइक्रो लाइफ है जो हमें दिखते नहीं है कि कितने ज्यादा लाइफ फॉर्म्स को शेल्टर देता है ये ट्री। शेड देता है, छाया देता है, एक पथिक को, जाते हुए पथिक को शीतलता प्रदान करता है, अर्थ प्रदान करता है। व्हेन वी डू एग्रीकल्चर और वृक्ष प्लांटेशन वी गेट फ्रूट्स एंड व्हेन वी सेल द फ्रूट्स वी गेट द monetary benefits. Okay, and the calm pleasure, of course we all love ecotourism, we love the pleasure gardens, we and there was kind of Ashok Vatika, we all know सीता माँ को जहां रखा गया था अशोक वाटिका। तो ये जो हम कहते हैं कि जो शौक होता है, जो बहुत बड़े बड़े लोगों का शौक होता है कि फार्म हाउस रखना, तो वो शौक कहां से आता है, प्लेजर गार्डन्स बनाने से। उन्हें बहुत शांति मिलती है, उन्हें लगता है कि उनका कुछ डिजायर पूरा हो रहा है। तो धर्म परोपकार कर रहा है, प्लांट इज डूइंग परोपकार टू द अदर क्रीचर्स, अर्थ फॉर द फार्मर्स एंड काम फॉर द दोज हु आर क्रिएटिंग प्लेजर गार्डन्स। सो यू आर गेटिंग धर्म, अर्थ एंड काम जस्ट फ्रॉम द प्लांटेशन। दैट्स हाउ यू कैन गेट मोक्ष। सो दिस इज द 8th श्लोक ऑफ Vriksha Ayurveda. Now, the topic is like Tridosh framework of plants. Now, in plants, we have three set of problems that a farmer get. Like, if there is an infestation of insects, insect का attack हो गया, उसको हम pest भी कहते हैं, ठीक है? Now, sudden change in weather, जो अभी दिख रहा है हमें, climatic change हो रहा है, माइक्रो क्लाइमेट भी बहुत जगह चेंज हो रहा है, और सडन अगर रेनफॉल होता है, ठीक है, बिन बादल, बिन मौसम बरसात जो हम कहते हैं, तो उसमें भी प्लांट्स को बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। और हमने अपने ऊपर भी देखा है कि जब इफ देयर इज अ ट्रांजिशन इन द वेदर, है ना, ऋतुओं का चेंज होता है, तो हमें उस समय प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने के लिए कहा जाता है कि बी केयरफुल, there is sudden change in weather, so you can even get cold, fever, कुछ भी problem हो सकती है। And there is a disbalance in vata, pitta and kapha, okay, in plants, and that's how they get attack of disease or even attack of the pest. Now, from the framework of science, if you go to the micro level, microscopic level, plant cell and animal cell में बहुत ज्यादा चेंज नहीं है, एक सेल वॉल का एक चेंज हमें दिखता है। ऑफ कोर्स चेंज बहुत डिफरेंसेस है दोनों में, बट माइक्रोस्कोपिक लेवल पे फ्रॉम द फ्रेमवर्क ऑफ साइंस इफ वी गो टू द माइक्रोस्कोपिक लेवल वी सी एनिमल सेल एंड प्लांट सेल, एंड देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल इज लाइक एनिमल सेल, प्लांट सेल हैज द एक्स्ट्रा लेयर ऑफ सेल वॉल हम कहते हैं, बट अदर माइक्रो लेवल पे बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है एनिमल सेल एंड प्लांट सेल में। एंड अगर हम भारतीय दर्शन का फ्रेमवर्क लेते हैं, सो वी गो फॉर आइदर सांख्य दर्शन और द वैशेषिक दर्शन। नाउ वी नो अबाउट द पंच महाभूत। नाउ द वात इज द कॉम्बिनेशन ऑफ वायु एंड द आकाश, पित्त इज द तेजस, दैट इज द अग्नि, एंड द अपस, दैट इज द जल, कफ is the apas and the prithvi, jal and the prithvi. Now even we are made up of panch mahabhut, so the plants are also made up of the panch mahabhut. Okay, so if you go through the scientific framework at the microscopic level, plant cell and animal cell are almost identical, so in the darshanik framework, so इससे होगा क्या बेनिफिट, अगर सेम है
if there is some parallel between plants and animal, so we can even draw parallel for the issues we go through in humans. In the same framework, we can go through for the plants. So what is the Vat, Pitta and Kapha dosh for the plants? Flower and fruit drop, yellowing of the leaves. It is the Vat dosh. Leaf yellowing, decay of the flowers and fruit. ओके अब जैसे गुआभा में हम देखते हैं तो प्री मैच्योर फ्रूटिंग होती है, वो सड़ जाता है. इवन इफ द फ्रूट इज डिकेइंग इवन इन द ट्रीज, दैट इज द पित्त दोष. फॉर द कफ दोष, प्री मैच्योर फ्रूट राइपनिंग, टेस्टलेस, मीठा नहीं लग रहा है, स्वादिष्ट नहीं लग रहा है, तीखा नहीं लग रहा है. मिर्ची को तीखा नहीं लग रहा है, मिर्ची तीखी लगनी चाहिए थी, वो तीखा नहीं लग रहा है. ठीक है. करेला तीखा लगना चाहिए था, वो अपने स्वाद में नहीं है. आम मीठा नहीं लग रहा है. सो उसका जो रस का दोष आ जाएगा, जिसका जो उसका जो हम कहते हैं बाय डिफॉल्ट नेचर है, उसका जो टेस्ट है, उसमें टेस्टलेसनेस अगर आ जाता है तो वी से कि इट इज अ कफ दोष. ओके. एंड फ्रूट बियरिंग डिलेड, वो बहुत ज्यादा राइपनिंग में समय ले रहा है, तो ये कफ दोष है. तो फ्रॉम द फ्रेमवर्क ऑफ वात पित्त कफ, वी कैन, यू कैन से, ग्रुप्स दीज ऑल प्रॉब्लम्स. सो हमें हर प्रॉब्लम को अलग अलग ट्रीट करने की जरूरत नहीं है. ओके. अगर हमें पता चल जाए कि इन होल ये वात दोष है, क्योंकि सिम्टम्स बहुत सारे हैं. मतलब इन एग्रीकल्चर वी गो फॉर लाइक मोर देन 10, 20, 30 सिम्टम्स ऑफ अ प्रॉब्लम. ओके. कि इंसेक्ट अटैक है, कि नेमाटोड है, कि इम्यूनिटी का इश्यू है, कि अर्ली फ्लावर ड्रॉप है, कि फंगस का अटैक है, वायरस का अटैक है, बैक्टीरिया का अटैक है. There are many of the problems in agriculture and in the orchard or tree plantation. तो if we can regroup into वात, पित्त and कफ, तो हमारा जो अप्रोच है सॉल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच ज्यादा बढ़ता है. ओके. एंड nematodes, fungal attack, underground mechanical barriers, viruses, these all are Vata dosh. Again, Pitta dosh is viral disease, salinity in irrigation water, fungal and bacterial infections. Again, the fungal nutrient deficiencies and excessive watering is the कफ दोष. जैसे हम कहते हैं कि बहुत ज्यादा ठंडा किसी ने पी लिया है ना, तो कहते हैं कफ दोष होता है, सर्दी हो सकती है, खांसी हो सकती है. तो आप देखो कि फ्रॉम द सेम फ्रेमवर्क से वी कैन ड्रॉ पैरेलल कि एक्सेसिव वाटरिंग इफ इट इज बीइंग डन, इट इज द कफ दोष. सो देयर आर मेनी set of problems that can be regrouped into Vata, Pitta and Kapha. Now, what is the remedy of the Vata dosh? So, Kunap Jal, we will go through what is Kunap Jal is. It is similar to upgraded version of Jivamrit that is being popularized by Subhash Palekar ji in the form of zero budget natural farming. जो हम सुनते हैं Jivamrit, उसका ये upgraded version है थोड़ा सा, Kunap Jal, and it is mentioned in Vriksha Ayurved thousands of years ago. Ghee plus Vitex Negundo, Nirgundi, we call it यहाँ सिंधवार भी हम कहते हैं झारखंड में. Fumigation of Vitex Negundo. Okay, it is the Vat solution for the Vat remedy. Pitta remedy, you can go for Triphala. Okay, now Triphala is being consumed by us. Okay, for Pitta remedy, you can also spray after the, of course, after the dilution to the plants also for the remedy of the pitta dosh. Ghee, honey, milk, vidanga. Now vidanga is the ayurvedic medicine for the children's. Okay, जो हम कहते हैं कि warm हो गया है पेट में, बच्चों को जो warm होता है तो उसमें vidanga दिया जाता है. Why vidanga? And in the indigenous dairy management, जो कहते हैं कि देशी गांव ऑर्गेनिक डेयरी की मेंटेनेंस में वो कर रहे हैं, कोई केमिकल्स का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो दे ऑल्सो यूज दी विदंगा. ओके. एंड रोज वाटर. फॉर कफ रेमेडी, remove the soil nearby the roots, put fresh dry soil, and also irrigate the water that is mixed with sesame or ash. Okay. It is somehow very technical. Those who do the agriculture, they can understand in a better sense, but I'm just mentioning all these things like the solutions of Vat, Pitta, Kapha is similar to what we do in Ayurveda. Okay. Now, what was the mistake that we did from last
40-50 years after the what we call green revolution. The farming of India is gav adharit, and in the West, farming was based on horses, not on the cows, their cows, Bos Taurus breed. Okay. So they were using the cow for milk and meat model. पहले मिल्क के लिए इस्तेमाल करते हैं, then they go for meat. Okay. That is the model for the Jersey, Holstein and Friesian, the Bos Taurus cow. And they used horses for the agriculture. But in India, we used cow for farming, for doing or making panchagavya or the Ayurvedic medicines. Okay. So farming and the life sciences, the Ayurveda or the medicinal sciences were based on the cow. But in West, cow was used for milk and meat model. तो जो मैंने पेपर भी पब्लिश किया था डीकोलोनाइजेशन ऑफ माइंड, तो कॉलोनाइज्ड माइंड को क्या लगा कि ओके, वेस्ट इज वेरी सक्सेसफुल इन डूइंग द डेयरी रेवोल्यूशन इन न्यूजीलैंड एंड यूके, सो वी नीड टू डू द क्रॉस ब्रीडिंग एंड वी कैन हैव द मोर मिल्क. ओके, नाउ हमारा मॉडल ही मिल्क पे बेस्ड नहीं है, हमारा मॉडल काउ यूरेन, काउ डंग एंड मिल्क पे बेस्ड है, प्लस एग्रीकल्चर पे बेस्ड है. Okay. Now, if your cow, if your indigenous cow is not being used in these all three, four things like milk, manure, cow urine, going to the Ayurvedic medicines, and the go ones, that is the ox is being used in the farm, then your cow is not feasible, or rearing a cow is not feasible for you. Okay. So there is a substantial difference between the business model of using a cow, the value chain, or you can say the basis of the agriculture. Okay. That's how the shlok was there. Gomaye vaste Lakshmi. Gomaye is the cow dung, the manure. There is no shlok that is telling like Dugdhe vaste Lakshmi. दूध में लक्ष्मी नहीं होती है. गोमय, गोबर में लक्ष्मी होती है. And you see, जो फेस्टिवल होता है दिवाली का, वो कब होता है? उसके साथ क्या होता है? लक्ष्मी पूजा, और वो होता है हार्वेस्टिंग के बाद. तो फार्मर जब हार्वेस्ट करता है, वो फिर अपने हार्वेस्ट को बेचता है, देन ही गॉट दी लक्ष्मी, अर्थ, पैसा आता है उसके घर, माँ लक्ष्मी की एंट्री होती है, तो उस समय लक्ष्मी पूजा हम करते हैं. तो वी नो कि बहुत सारे फेस्टिवल्स हमारे एग्रीकल्चर बेस्ड हैं, तो एग्रीकल्चर चला जाएगा तो हमारा जो रेलिवेंस है फेस्टिवल्स का वो भी चला जाता है. तो वहां पर भी क्या कहा जा रहा है? गोमय वस्ते लक्ष्मी. तो हमारा जो फोकस है, व्हेन वी वेंट टू दी व्हाइट रेवोल्यूशन जो हम कहते हैं, और दूध पी सफेद नहीं होता है, ठीक है, इट वाज काइंड ऑफ गलती हुई है हमसे, हमने दूध पे फोकस किया, गोबर को छोड़ दिया, तो ये एक ब्लंडर हुआ कि लक्ष्मी जो है किसानों से दूर होती गई. तो एक मॉडल का जो एक बहुत फंडामेंटल है, वो समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट था. तो वृक्षा आयुर्वेद इज अगेन काउ बेस्ड फार्मिंग को प्रमोट करता है. ठीक है. नाउ दिस इज द कुणप जल एंड पार्टिकुलरली हर्बल कुणप जल. नाउ लेट मी टेल यू कि पिछले टॉक में भी मैंने दो कुणप जल के बारे में बताया था, एक दी कुणप जल एंड द अदर वन इज द हर्बल कुणप जल. नाउ इन द ओरिजिनल कुणप जल, फ्लैश वाज यूज्ड, बोन मैरो, ब्लड, बोन्स वेयर यूज्ड, और ये बहुत फार्मर्स को पसंद नहीं आया. ठीक है, कि हम एनिमल के रेमिनेंट्स को क्यों यूज कर रहे हैं फार्मिंग में. ओके. नाउ लेट मी गिव यू द बेसिक फंडामेंटल ऑफ आयुर्वेद टेक्स्ट. आयुर्वेद में जो सोर्सिंग होती है, इट इज कमिंग फ्रॉम द मिनरल्स, इट इज कमिंग फ्रॉम द हर्ब्स, एंड इट इज कमिंग फ्रॉम द एनिमल रेमिनेंट्स. ठीक है, ये तीन सोर्स होता है जिससे आयुर्वेदिक मेडिसिन बनती है. That's how many saints and many gurus preach like आयुर्वेद को हम आर्ष ग्रंथ नहीं कह सकते, ये ऋषियों का ग्रंथ हम नहीं मान सकते, क्योंकि इसमें जीव हत्या है ना. ये कॉन्ट्राडिक्टरी, ये कॉन्फ्लिक्ट और ये कंट्रोवर्सी रही है कि आयुर्वेद में एनिमल्स का इस्तेमाल होता है, तो हमें वैसे मेथोडोलॉजी पे नहीं जाना है जो
एनिमल किलिंग को प्रमोट करता है. So, but the scientific basis of Ayurveda is these three pillars: minerals, herbs, and the animal remnants. So, the Vriksha Ayurveda में भी ये बात है. So, for that कि ये सारे farmers easily adopt कर सके, we have the formulation of herbal kunapjal popularized by Asian Agri History Foundation and the Pantnagar University. तो उसका ये इंग्रेडिएंट्स है. दिस इज वन ऑफ द वेरी गुड लिक्विड मैन्योर. जीवामृत हम सभी को पता है, बट दिस इज द इंग्रेडिएंट्स एंड यू कैन सर्च फॉर दिस हर्बल कुणपजल making, how to make it and how to use it on plants. Now these are the ingredients. Sprouted urad is also used, that is the black gram. Okay, the fourth point is the black gram. And oil cakes is being used, buttermilk, chopped local wheats is being used. Okay, now farmers बहुत परेशान रहते हैं कि there is weeds का बहुत issue है, तो herbicide as a chemical use करते हैं. It is one of the deadliest chemical one can use in your farm. Okay, the herbicide. Now that weeds is being also consumed in the manure making, so your weeds has some economic value. Okay, so you don't need to hate the weeds in your farm. Okay, so this is the herbal kunapjal. Now the Surapala Vriksha Ayurveda, the book is published by the Ancient Agri History Foundation, and the Hindi version is being published by the Chokhamba publication from Kashi. So the Shlok Sankhya 230 and 231 says that you can get out of season fruiting. So farmers का एक प्रॉब्लम है कि फ्रूटिंग होती है, प्राइस नहीं मिलता है. तो आउट ऑफ सीजन अगर फ्रूटिंग होगी तो वी कैन गेट बेटर प्राइसिंग. So this Shlok Sankhya 230 and 231 suggest how to do or how to treat a plant in a manner that you can get the fruiting out of this season. Now let me tell you what was mentioned here in the shlok. You need to use varahi, you need to use jeera, sugarcane juice, and that should be kept for a month in a pot containing ghee prepared in the moonlight. And when the mixture is well formed, roots of the trees should be smeared with it, and the basin should be filled with mud. Then sugarcane juice should be profusely sprinkled, and the trees should be smoked with honey and the kunapa jal. Okay, so this is the methodology कि आप fruiting ले सकते हो out of season. अब यहाँ पर एक डायलेमा हुआ, घी का यूज है, हनी का यूज है, तो ये इकोनॉमिकली फिजिबल है क्या? खाने को नहीं मिल रहा है प्योर हनी, प्योर घी, और हम प्लांट्स को दिए जा रहे हैं. ओके, सो ये मैंने अपने बुक में इसका बहुत अच्छे से इकोनॉमिक एनालिसिस किया है. बिकॉज इफ समथिंग इज वेरी कॉस्टली बट इफ द अमाउंट इज यूज्ड इज वेरी मिनिमल, बहुत मिनिमल मिलीग्राम में अगर यूज कर रहे हैं तो इकोनॉमिकली वो फिजिबल हो जाता है. यू डोंट नीड टू यूज इन केजीज और ओके क्विंटल्स. ओके, सो that's how you can get the fruiting out of the season. Now prolonged fruiting and flowering you can get in the shlok 235, that is again using crystalline sugar, misri जो हम कहते हैं, yasti madhu, madhuka, and flowers of these madhuka, and again honey from the lotuses. That the honey that is being used is not the general honey should be from the lotuses. थोड़ा सा इश्यू है इसमें, टिपिकल नहीं है हनी, बहुत मेहनत की बात है. बट यू कैन हैव द सॉल्यूशंस ऑफ ऑल दीज प्लांट वंडर्स. दो अभी हम जेनेटिकली सोच रहे हैं कि जेनेटिकली हम कुछ कर सकते हैं क्या, हाइब्रिडाइजेशन कर सकते हैं क्या, सीड को बदल दो. एंड वी हियर लॉट अबाउट दीज जीएमओ मॉडिफाइड सीड्स एंड हाइब्रिड सीड्स की इसका इल इम्पैक्ट कितना है हेल्थ पे. हम जेनेटिकली हर चीज सोच रहे हैं, बट यहाँ पर रसायन शास्त्र का इस्तेमाल हो रहा है, कुछ लिक्विड सॉल्यूशंस का इस्तेमाल हो रहा है, और जो प्लांट्स पे हम स्प्रिंकल करते हैं तो हमें बहुत सारे वंडरस बेनिफिट्स मिल रहे हैं. और भी जो श्लोक है जिसमें से एक है कन्वर्टिंग अ ट्री इनटू क्रीपर. नाउ टेमरिंड इज अ ट्री, but tamarind can also be converted into a creeper.
कोई फार्मर या कोई ग्रोवर क्यों क्रीपर में कन्वर्ट कर रहा है एक ट्री को? कोर्स दी हार्वेस्टिंग। ट्री में हम फ्रूट्स को, जब फ्रूट फॉल होगा या पेड़ पे चढ़ के बहुत ही मेहनत करके बहुत हाई लेबर कॉस्ट के साथ हम हार्वेस्टिंग कर सकते हैं फ्रूट का। बट इफ इट इज अ क्रीपर, हम प्लक कर सकते हैं। क्रीपर इज लाइक कि वो हमारे हैंड के रीच से बहुत क्लोज होगा। चेंजिंग द एरोमा, यू कैन इवन चेंज द एरोमा ऑफ अ प्लांट, दैट इज मेंशन्ड इन द श्लोक नंबर 233. So I am just opening the Pandora box of these all plant wonders जिसको हम टेस्टिफाई, वेरीफाई, साइंटिफिकली वैलिडेट कर सकते हैं। डॉर्फिंग अ प्लांट इज देयर, सीडलेस फ्रूट इज देयर। ये हमें बहुत लगता है कि अरे भाई ताइवान ने ऐसा सीड बनाया। सीडलेस लेमन इज देयर। सो ये बहुत ही मॉडर्न है, बहुत ही रिसेंट एडवांसमेंट है बॉटनी में एंड एग्रीकल्चर में। बट यू कैन सी these wonders are mentioned there. Now, dwarfing a plant, हम बोनसाई ट्री को बहुत समझते हैं, जानते हैं कि ये चाइना का एक वरदान है, ये एक साइंस जो है कि बोनसाई कैसे बनाते हैं। नाउ डॉर्फिंग अ प्लांट भी 261, 262, 263 में ये मेंशन है। सुरपाल वृक्ष आयुर्वेद, नॉट जस्ट इन अदर वृक्ष आयुर्वेद। ओके, अदर वृक्ष आयुर्वेद में आइदर श्लोक नंबर अलग होगा या कुछ और वहां मेंशन किया हुआ होगा। ड्रिप एरिगेशन, जो पिक्चर्स है, वाटर पिक्चर्स हम कहते हैं कि घड़े को ट्री के नीचे गाड़ दिया गया, उसमें छोटे छोटे होल्स कर दिए गए, उसमें पानी भर दिया गया एंड वो रिस्क है, वो पानी जो है ड्रिपिंग से जो है वो ट्री को अपना इरिगेट कर रहा है। सो दोज हु डू एग्रीकल्चर, दे नो द फंडामेंटल की ट्री को पानी नहीं चाहिए होता है, ट्री को मॉइस्चर चाहिए होता है, वापसा चाहिए होता है, जो कॉम्बिनेशन है एयर और वाटर का। ओके, सो इफ यू डू जस्ट वाटरिंग एंड वाटरिंग एंड वाटरिंग, तो आप कफ दोष दे दोगे प्लांट को। ओके, इसीलिए हम कहते हैं निताई गुड़ाई एंड टिलेज इज देयर, कि हम एरिएशन चाहते हैं प्लांट्स में। सो मॉइस्चर के लिए हमें ये फ्लडिंग करने की जरूरत नहीं है। तो ये ड्रिप इरिगेशन का जो पार्ट है, जो हम कहते हैं इजराइल ने पेटेंट किया है ये टेक्नोलॉजी, और एक स्टोरी है, बैक स्टोरी की। ओके, जो जिसने, अभी मुझे नाम रिकॉल नहीं हो रहा, जिसने भी ये डिस्कवर किया, तो उसके बैकयार्ड में उसने देखा कि एक पाइपलाइन में क्रैक था और पानी ड्रिप करता था, तो उस ट्री का ग्रोथ बहुत ज्यादा था, जहां पर बूंद बूंद पानी गिरता था, ड्रॉप ड्रॉप वाटर ड्रॉपलेट्स। तो हम कहते हैं अभी एग्रीकल्चर में दिस इज द प्रिसीजन एग्रीकल्चर, की एकदम प्रिसाइजली रूट्स के पेरिफेरी में हम ड्रॉप मैनर में वाटर को डालें, सो दैट की वाटर सेविंग होगी, रूट ग्रोथ होगा, प्लांट ग्रोथ होगा। तो ये ड्रिप इरिगेशन मेंशन है श्लोक नंबर 75। नाउ रिकवरिंग ऑफ द स्वीटनेस ऑफ द फ्रूट, हमने अभी ये दोष भी देखा था कि मीठा नहीं लग रहा है। जैसे अभी गुआभा है, आप अगर नोटिस करोगे, गुआभा ने अपना टेस्ट लूज कर दिया है। जब कमर्शियल एग्रीकल्चर ने साइज तो बड़ा कर दिया गुआभा का, बट टेस्ट नहीं है जो हमें बचपन में मिलता था गुआभा का जो टेस्ट है। ठीक है, एंड ऑफ कोर्स दी, ये जो सॉल्यूशन है जो मैं फार्मर्स के पास नहीं है, इसका सॉल्यूशन किसी भी साइंसेस में, अभी हम जो बात करते हैं बॉटनी एग्रीकल्चर में, हेल स्टॉर्म इम्पैक्ट रिकवरी, ओला गिर गया, बर्फ गिर गया, खेत बर्बाद हो गया, तो जो बचा है पौधा उसको हम रिकवर कर सकते हैं क्या? तो ये इसको मैं मेंशन कर देता हूं कि इसका सॉल्यूशन इसमें क्या दिया हुआ है। सो 159 श्लोक कहता है, इफ कुक्ड राइस, राइस इज बीइंग कुक्ड एंड देन कूल्ड, मिक्स्ड विद द कर्ड, दही के साथ मिक्स किया हुआ है, जो उड़ीसा का एक भोजन है। उड़ीसा में चावल को पानी में डुबा करके दही के साथ मिक्स करके खाया जाता है। ये उड़ीसा का बहुत ही अच्छा, कहते हैं गर्मियों में ये बहुत ही फेमस, लोगों में बहुत प्रचलित है ये जो फूड है। तो इसको यूज आप कर सकते हैं इमीडिएटली फॉर द प्लांट्स, अगर आपको हेलस्टॉर्म की इंपैक्ट आपके फार्म पर या आपके प्लांट्स पर हुआ है। दिस इज द इमीडिएट रिकवरी। ठीक है, ये लॉन्ग टर्म हेल्प आपको नहीं कर रहा है। तो श्लोक नंबर 199 ये कहता है कि trees suffered from the damage of frost और the scorching heat, बहुत ज्यादा गर्मी
और बहुत ज्यादा ठंडा अगर आ गया है, तो यू शुड स्प्रिंकल कुनप वाटर, जो अभी हम कुनप जल हमने बनाया था, विथ मिल्क, कच्चा दूध, ओके, रॉ देसी काव मिल्क को कुणप जल के साथ अगर इफ यू स्प्रे इट, तो ये लॉन्ग टर्म जो कहते हैं कि रेजुविनेशन जो कह रहे हैं, रिकवरी जो है वो करता है। तो दीज आर दी फ्यू प्लांट वंडर्स जो मैंने आपको बताया। देयर आर मेनी जो मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, इसलिए मैंने आपको बताया नहीं। आई इट्स लाइक वर्ल्ड इज नॉट रेडी टू हियर सम वेरी क्रेजी मतलब आइडियाज की फ्रूट को ही बदल सकते हैं क्या, उसका शेप, उसका उसका साइज, या जो हम कहते हैं कि अभी फूड सिक्योरिटी का इश्यू है, तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं क्या कि मैंगो ट्री जो है वो 8 महीने 9 महीने मैंगो फ्रूटिंग कर सकता है क्या? ऐसा पॉसिबिलिटी है क्या? विदाउट अल्टरिंग दी सीड, उसमें जेनेटिकली मॉडिफिकेशन नहीं करना है, ओके, या बहुत ज्यादा उसमें छेड़छाड़ नहीं करनी है नेचर से। नेचुरली हम क्या ऐसा कर सकते हैं क्या कि एक फ्रूटरी बहुत फ्रूटिंग कर दे? इट इज बीइंग टोल्ड कि नेचुरल फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग में प्रोडक्शन बहुत लो हो जाता है, एंड इट इज ऑफ नो यूज जस्ट बिकॉज ऑफ फूड सिक्योरिटी। सो हमें केमिकल फार्मिंग करनी चाहिए, केमिकल एग्रीकल्चर हमें करनी चाहिए। बट एक कंपैरिजन मैं बताता हूं कि इन ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर, yes, for a particular time period, if you compare 1 month of an organic farm and 1 month of a chemical farm will win most of the times. कुछ टाइम टाई भी होगा, कुछ टाइम ऑर्गेनिक फार्म आगे निकल जाएगा। बट फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन फ्रूटिंग फ्लावरिंग जो है वो ऑर्गेनिक फार्म्स की ज्यादा होती है। ओके, सो जो मैंने पहले श्लोक मेंशन किया था, सबसे पहला श्लोक इस टॉक का, इट वाज रेजुविनेशन ऑफ अ प्लांट और अ ट्री फ्रॉम द लाइटनिंग स्ट्राइक, वज्रपात। तो ये कुछ ऐसे ऐसे श्लोक हैं जो हमारे पास मेथड नहीं है अभी कि कैसे टेस्टिफाई हम करें, मतलब लाइटनिंग कब होगी, किस प्लांट पे होगी, मतलब इट्स लाइक इसको रिपीट नहीं कर पा रहे हम इस एक्सपेरिमेंट को। तो ऐसे भी बहुत सारे श्लोक हैं जो वंडरस है। सो दिस इज वृक्षा आयुर्वेद फॉर यू। और मैंने सिर्फ 5 श्लोक को अलग किया। इट हैज मोर देन 300 प्लस श्लोक, मोर देन 300, ओके। और जो लास्ट टॉपिक मैंने बताया उसको हम कहते हैं विचित्र द्रुम कारणम। द्रुम जो मैंने बताया, ऐसा प्लांट जिसमें फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग होती है, विचित्र, है ना, विचित्र कहते हैं। इट्स नॉट ऑब्वियस, इट इज नॉट इंट्यूटिव इन नेचर। ऑब्वियस नहीं, ऐसा हो सकता है क्या कि हेल्थ स्टॉर्म के बाद भी प्लांट को रिकवर किया जा सकता है क्या? तो इसी को हम कहते हैं विचित्र द्रुम कारणम। ये प्लांट म्यूटाजेनेसिस, अगर हम आज के साइंसेस में कहें तो ये टॉपिक प्लांट म्यूटाजेनेसिस के नाम से जाना जाता है, जो इस टेक्स्ट में मेंशन्ड है। और इस बुक में मैंने बस 5 श्लोक को एक्सप्लेन किया थ्रू आउट द बुक, एंड अदर all other school of thoughts of organic farming in that is being practiced in India. And you can also watch all the preparations in YouTube channel named with Krishi Utthan. Thank you so much. ये जो कुडफ जल है, is it commercially available somewhere? Actually, I am training farmers to make it and make it available to the urban farmers. तो कुछ दिन में commercially available हम ही करा देंगे। कितनी देर में? In a month. And I'm not a farmer, I'm just like घर में ही I'm passionate about this thing. I don't have land, इसलिए I'm not a farmer. Okay. होता तो एक दिन में बन जाती। आपने जो बताए, जिन चीज़ों के रेमेडीज बताए, कुछ ये है कि जब भी वेजिटेबल प्लांट्स होते हैं, स्पेशली टमेटो और कभी कभी बैंगन, उनमें कीड़ा बहुत जल्दी लग जाता है। वो जैसे ही फ्रूट आना शुरू होता है, साथ के साथ पत्ते खराब हो जाते हैं और कीड़ा लग जाता है। उसका कुछ रेमेडी होता है क्या? सबसे पहले तो आउट ऑफ सीजन ट्राई नहीं करना चाहिए। जैसे टोमेटो का जो सीजन है उसमें उसका प्लांटेशन आप करिए। जैसे वाटरमेलन को अगर किसी ने ठंडे में लगा दिया, वो गर्मी का चीज है, वो समर, तो सीजन को बाईपास नहीं करना चाहिए। जैसे मुझे मन है टोमेटो का, तो मैंने टोमेटो कर दिया। तो आउट ऑफ सीजन इंसेक्ट अटैक होता है, तो पहले ये देखते हैं। दूसरा, आपको अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है, तो अगर नीम ट्री है आपके पेरिफेरी में आसपास कहीं, तो ये
रेनी सीजन में उसके फ्रूट्स गिरते हैं, नीम सीड्स गिरते हैं, तो उस सीड्स को कलेक्ट करके मिक्सी में आप उसको ग्राइंड अगर कर लेते हैं और उसको आप स्टोर कर लो एंड 10 टाइम्स 20 टाइम्स डाइल्यूट करो वाटर के साथ, उसको आप स्प्रे कर दो। ओके, सो एक ये इमीडिएट सॉल्यूशन है जो हम लोग करते हैं। एंड बहुत लोग शैम्पू को यूज करते हैं जो नेचुरल शैम्पूज होते हैं जिसमें शिकाकाई होता है, ठीक है, या मस्टर्ड को बहुत लोग यूज करते हैं। ओके, और इवन यू कैन यूज, जैसे अगर टोबैको रेमिनेंट्स जो होते हैं, जो हमारे जैसे इधर के रीजन में हम जैसे खैनी वर्ड यूज करते हैं, खैनी, तो वो जो स्टोर होते हैं उनके, वो बच जाता है बहुत सारा, तो वो बहुत काइंड ऑफ इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टी उसमें होती है, ठीक है। तो ऐसे कुछ कुछ सॉल्यूशंस हैं जिसको लोकली अगर आपके पास अवेलेबल है। हाँ, मस्टर्ड वगैरह को कैसे यूज करना है? मस्टर्ड को बेसिकली आपको जैसे जहां पर आपको दिख रहा है कि कुछ डिजीज है या इंसेक्ट इन्फेस्टेशन दिख रहा है, तो वहां पर मस्टर्ड ऑयल को थोड़ा सा आप उंगली से लेके वहां पे रब कर दो, तो वो जो इफेक्ट है वहां पर थोड़ा आपको दिखेगा कि वो कम हो गया है। और दूसरा, आउट ऑफ सीजन नहीं प्लांट कर रहे सीजन में ही कर रहे हैं। पहले प्लांट ठीक ग्रो करता है, उस पे फ्रूट भी आ जाता है, लेकिन जब फ्रूट राइप होने का सीजन आता है तो उसके पत्ते खराब हो जाते हैं और कीड़ा लग जाता है। ओके ओके ओके, अभी हमने देखा जो वात पित्त कफ में हमने देखा, यस यस। जी। तो ये पहला तो न्यूट्रिशन का प्रॉब्लम है, इट्स नॉट अ कि डिजीज है, अब उसको हम क्योर क्यों करें, न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है। तो न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है तो एक न्यूट्रिशन हम लोग बनाते हैं जो कहते हैं कि अगर पोटैटो का जो छिलका है उसमें बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट होता है, तो इसको आप फर्मेंट कर दो, मतलब सड़ा दो थोड़ा सा, उसका वाटर को बस यूज करो, पानी को, पोटैटो को नहीं, ठीक है। तो वो तुरंत आपको इमीडिएट रिजल्ट दिखेगा कि अच्छा हाँ बहुत ज्यादा इसमें ग्रोथ दिख रहा है। तो न्यूट्रिएंट्स के लिए आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, या पंचगव्य, अगर पंचामृत आपको बनाना आता है तो, जो हम कहते हैं नहीं आता है कोई बात नहीं, तो पंचगव्य मिलता है, और जो लोग बनाने जानते हैं उनके लिए बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव होता है, जो काव यूरिन, काव डंग, गुड़, दूध, दही, नारियल पानी, बहुत सारा एक मिक्सिंग है जिसको बना के 33 टाइम्स डाइल्यूट करके, इट्स ऑल अबाउट कि ट्रेनिंग चाहिए होगी इसके लिए कि कैसे कैसे सॉल्यूशंस बनते हैं। और रेडीमेड सॉल्यूशंस आप ले सकते हो, बायोपेस्टिसाइड के नाम से, बायो वर्ड यूज होगा वहां पर। हेलो सर। सर मुझे हेलो, लूनार कैलेंडर और वृक्षारोपण में कुछ कनेक्शन है क्या सर? यस, वृक्षायुर्वेद में उतना मेंशन नहीं किया हुआ है जितना कृषि पराशर में है। ओके, कृषि पराशर वाज रिटन बाय दी महर्षि पराशर। ओके, तो उसमें पूरा लूनर कैलेंडर, पूरा नक्षत्र है, पूरा भरमार है उसपे। वृक्ष आयुर्वेद में 2-3 श्लोक में नक्षत्रों का नाम है कि इस नक्षत्र में नहीं करना चाहिए, इस नक्षत्र में करना चाहिए। लाइक रोहिणी नक्षत्र जो हम कहते हैं, इट इज फॉर पैडी का प्लांटेशन का टाइम है। झारखंड में एक फेस्टिवल है जिसको हम लोग कहते हैं रोहेन माटी। सो रोहन माटी के बाद कहा जाता है कि अब आपको प्लांटेशन करनी है, सोइंग करनी है, उसके पहले मत कर देना, और उस फेस्टिवल के 1 मंथ बाद मत कर देना। तो रोहिणी नक्षत्र जो है, मॉनसून के जस्ट पहले की जो जो नक्षत्र है, वो एक बहुत अच्छा सीजन होता है प्लांटेशन का। तो कुछ कुछ नक्षत्रों को हम कहते हैं कि अरे ये खरमास है, इसमें शुभ कार्य नहीं करना चाहिए, है ना। आप देखोगे कि बहुत सारा रेस्ट्रिक्शंस आता है हमारे साल भर के, और एक बात मैं कहना चाहूँ, आज हमारा नव वर्ष मतलब अब आ चुका है और उसको हम लोग सभी सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो वृक्षायुर्वेद बस मेंशन करता है कि इस नक्षत्र में आप करो, इस नक्षत्र में आप मत करो। ओके, गुड इवनिंग सर। मेरा प्रश्न ये है कि ग्रीन रेवोल्यूशन के टाइम पे फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स का यूज बढ़ा दिया गया और उनके इम्पोर्टेंस को अच्छी तरीके से झलकाया गया, और फिर अब हम वापस ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ बैक आ रहे हैं। तो या फिर फर्टिलाइजर का इम्पोर्टेंस वहां पे उस टाइम हमें ध्यान नहीं दिया, क्योंकि फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स के ज्यादा यूज की वजह से ही हम वापस जिस ग्रीन रेवोल्यूशन से पहले वाले फार्मिंग थी उस तरफ हम वापस आने की हमें जरूरत पड़ रही है। और इसको आप क्या वैदिक कृषि से किस तरीके से ओके, अब हम लोग अभी जो मोड में जा रहे हैं इसको हम लोग कह रहे हैं अभी एवर ग्रीन रेवोल्यूशन, नॉट जस्ट ग्रीन रेवोल्यूशन, एवर ग्रीन रेवोल्यूशन। और गलती हमसे इसलिए हुई क्योंकि हमें इमीडिएट रिजल्ट्स चाहिए था, हमें इमीडिएट काउज में मिल्किंग चाहिए थी कि अचानक से 20 लीटर हो जाए, 25 लीटर हो जाए, तो हमने क्रॉस ब्रीडिंग की और फॉरेन ब्रीड लाया। तो सिमिलरली
हम क्योंकि गुलाम थे, इंडिपेंडेंट नहीं थे, तो हमारी सारी व्यवस्थाएं डाउन थी। ओके, तो हमें लगा कि अब हम इंडिपेंडेंट हुए हैं तो कुछ पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए कि फूड सफिशिएंसी तुरंत हम अचीव कर ले। 5 ईयर प्लान जो पहले होता था, 10 ईयर प्लान, ठीक है। सो तुरंत अचीव करने में नेचर का हमने कुछ नियम तोड़ा और उसका ड्रॉबैक हमें मिल रहा है, ठीक है। तो ये उस समय के लिए सुटेबल था, लेकिन अगर आज भी कैरी कर रहे हैं तो ये ब्लंडर है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको सीखना पड़ेगा जो हम भूल चुके हैं, ठीक है, भूल चुके हैं कि इंटीग्रेटेड फार्म जैसा कुछ नहीं होता है। फार्मिंग ही इंटीग्रेटेड थी। काउ रियरिंग, पॉन्ड, वाटर मैनेजमेंट, कृषि, प्लांटेशन, अग्निहोत्र, ये जितना है ये अलग अलग नहीं है, ठीक है। दिस वॉज इंटीग्रेटेड ऑल द टाइम, ठीक है। अभी सोफिस्टिकली हम कह रहे हैं कि हमें इंटीग्रेटेड फार्मिंग करनी चाहिए, मतलब ये भी करो वो भी करो साथ में, तब तुम्हारा इकोनॉमिक फिजिबिलिटी आएगी। बट फार्मिंग को हमने पहले तोड़ा कि थाउजेंड्स ऑफ एकड़ में ओनली पेडी, ओनली शुगर कैन, ओनली टोमेटो। अब बोल रहे हैं पर्माकल्चर करो, अब बोल रहे हैं एग्रो इकोलॉजी बनाओ। तो गलतियां हमने कर दी है, बट हमें सुधारने के लिए काउ रियरिंग पहले स्टार्ट करनी पड़ेगी, ठीक है। काउ रियरिंग जो मिल्किंग, नॉन मिल्चिंग काउज जो है, जो दूध नहीं भी देती है, ऐसी काउ जब आती है तो काउ यूरिन और काउ डंग देती है, ठीक है। नाउ दैट इज द रिच सोर्स ऑफ माइक्रो एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो अब आपको समझ में आएगा कि काउ की, गाय की इतनी दुर्दशा क्यों है, क्योंकि इसका एग्रीकल्चर से कॉन्ट्रैक्ट टूट गया है। गाय को हम डेयरी के रूप में देखते हैं, बट काउ इज द पार्ट ऑफ एग्रीकल्चर। तो वैदिक वर्ड आप अगर यूज कर रहे हैं तो सिर्फ वैदिक नहीं, ये तो पूरा मैंने कहा रिसेंट विश्व वल्लभ ग्रंथ में भी है, वेद में भी है, वेद के बाहर भी है। और वृक्षायुर्वेद जो वर्ड है, इसमें वर्ड वेद भी मैं थोड़ा क्लियर करना चाहूंगी, वेद वर्ड क्यों यहाँ पे आ गया है। वेद तो 4 ही वेद हैं, तो क्या ये थोड़ा सा मिस इंटरप्रिटेशन हो गया है, क्या गलत शब्द का प्रयोग हो गया है। तो वेद विद धातु से है और उसका एक अर्थ लाभ भी होता है, ओके, ज्ञान और लाभ, फायदा, बेनिफिट। तो आयुर्विज्ञान, आयु की जो विद्या है, एज की विद्या, नॉट जस्ट सिम्टम्स, नॉट जस्ट प्रॉब्लम्स, एज को बढ़ाना, क्वालिटी ऑफ लाइफ को बढ़ाना, ये है आयुर्वेद, इसको कहते हैं आयुर्वेद। और उसके आगे है वृक्षाणाम, वृक्षों के लिए जब हम बात कर रहे हैं तो वो है वृक्षायुर्वेद। तो ऐसा ग्रंथ जिसमें आयु विद्या है, वृक्षों की आयु विद्या है, और उससे हमें लाभ मिलेगा। किस रूप में लाभ मिलेगा? धर्म, अर्थ, काम एंड ऑफ कोर्स मोक्ष। अभी मतलब सिक्किम पूरे इंडिया में एक ही स्टेट है जिसमें बहुत सारी जगह मतलब लार्जली ऑर्गेनिक फार्मिंग पे वो है। तो उसके लिए उनको मतलब पूरा ऑर्गेनिक फार्मिंग के जाने के लिए कम से कम 16-17 साल का टाइम पीरियड लगा। तो मतलब अगर ऑर्गेनिक फार्मिंग करना ही होगा तो इतना ही टाइम स्पेंड जाएगा क्या हर स्टेट के लिए? ऑफ कोर्स जाएगा, क्योंकि ऐसा नहीं कि एक फार्म इतना टाइम ले रहा है, पूरे स्टेट की बात हो रही है। तो पहले 10 फार्मर करेंगे पूरे स्टेट में, वो 4-5 साल तक करते हैं, वो लीड बाय एग्जांपल करते हैं, फिर 10 विलेज का डेवलपमेंट होता है, देन 10 ब्लॉक, देन 10 डिस्ट्रिक्ट, ऐसे करते करते 16 साल लगे हैं, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं, ऐसा नहीं है कि पूरा स्टेट अगर पॉलिसी बना ले, जैसे अभी नेचुरल फार्मिंग की पॉलिसी आई है, तो ये 16 साल नहीं लगेंगे, ठीक है।